Hello everybody. आज I know it's a little unexpected and class बहुत जल्दी हो गई, right? So considering this unexpected time change, let's wait for 2 minutes so that people can get the notification and then they can join. Hello. I was saying that let's just wait for 2 minutes so that some more people can also join. Hi Aditya, you're asking कि आज English class होगा? I mean, I'm not really sure. मैं बायो की क्लास लेती हूँ तो मुझे नहीं पता. And busy भी हो सकते हैं. The person who takes the English class might be busy. College fest चल रहा है actually. And जहाँ तक मुझे पता है English वाली जो आपकी सेशन लेती हैं वो शायद हिंदू से ही है. तो हमारे कॉलेज में तो आज फेस्ट है. ओके सो अपडेट आया है दैट भार्गवी मैम आज अवेलेबल नहीं है. दैट मीन्स आज इंग्लिश का क्लास नहीं होगा. बट कोई बात नहीं, आज आप बायो पढ़ो. तो हम पढ़ना स्टार्ट करें या फिर हम 1-2 मिनट और वेट करें? हम ओके सो स्टार्ट ही करते हैं हम. ठीक है, 1 मिनट में बस सेट कर लूँ आपका पे थोड़ा क्वेश्चंस आज के. सो डू यू गाइस लाइक बायो? मतलब मेरे को तो पसंद थी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग zoology ऑनर्स. बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? एंड आगे क्या सोचा है अपने करने का सीयूईटी देके? स्टार्ट तो हम कर ही रहे हैं बट थोड़ा आज टाइम है तो इनफॉर्मल बता दो.
Okay, anyway, let's start only. Hmm. Um, like I always introduce myself before starting, I do the same today. So, my name is Aarushi Anand, and I am from Hindu College, and I'm currently doing BSc Honors Zoology, and I got 100 percentile in biology, psychology, and English, and I also got 99.8 in chemistry and physics. So, that was about me, and I gave my exam last year. So, it was like the second year of CUET, and this year is going to be third, though thoda difficulty level might increase. Now, before moving further, I'll just tell you quickly that ExamFactor is offering you other things as well, like a mock test series, which is available for subjects like accounts, BST, economics, maths, physics, chemistry, biology, history, geography, political science, psychology, English, and general test. Okay, and you should I highly recommend this mock test series, and you must have seen testimonials also of people. So basically ना practice आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, and for practice आप क्या करोगे, you need mock test, right? And these are very very important because इससे सिर्फ आपकी practice concepts नहीं होते, इससे आपका time management भी practice हो जाता है, इससे आपकी strategies भी बन जाती है that how you should go about a chapter or a subject. ठीक है. Then we have crash courses in which they have one shot video lectures of a particular chapter in each subject, ठीक है, which is also available for accounts, economics, mathematics, physics, chemistry, bio, history, political science, English, and general test. ठीक है, and crash courses आप करो so that you can revise, and especially मतलब सबसे ज़्यादा one shot videos या सबसे ज़्यादा concept clarity is important for the chapters जो deleted थे, जो कि आपका crash course में cover हो जाएंगे. So deleted chapter बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार ना, people do not मतलब, क्योंकि जैसे मान लो दो तीन चैप्टर्स हैं बायो में भी, वो मैं स्टार्टिंग से पढ़ती आ रही हूँ, बट देर आर सम चैप्टर्स विच आई हैव टू कंप्लीट इन अ वीक, let's say. So it becomes a very big problem, so you should do that, ठीक है, and it would be very beneficial for you. And honestly CUET की जो कोचिंग कहते हैं, मतलब दिस इज जस्ट अ पर्सनल थिंग, CUET की कोचिंग कई बार बहुत मिसलीडिंग होती है, सो आपको ना बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें लेनी चाहिए, जो कि क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट होता है. ऐसे इफ somebody tells you CUET coaching and then they teach you जनरल टेस्ट पूरा, बट जनरल टेस्ट यू हैव टू सी व्हाट कोर्स कॉम्बिनेशन आपका लग रहा है जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट की ज़रूरत है. ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम where is it, we have to start from here. Okay, no sorry, इसके बाद here, yes, ठीक है. So this is your first question. Which are the following methods are commonly used in DNA fingerprinting? Your options are A. Genetic transformation, B. PCR and RFLP, C. Bioprospecting, and D. Molecular diagnosis. Giving you a time to think, giving you a minute to think about this. ठीक है, तो चलो बात करते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, PCR and
RFLP एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, सो सबसे अगर मैं सोचूं कि सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से, तो मैं एलिमिनेट करूँगी। एलिमिनेट में मैं देखूंगी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगा। देखो फिंगरप्रिंटिंग में ना हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, हम पहले तो एम्प्लीफिकेशन करेंगे सो दैट डीएनए मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिंगरप्रिंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड है ये, कीवर्ड ये हमेशा याद रहना चाहिए आप लोगों को। फिंगरप्रिंटिंग में जब भी मैं बात करूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप यू गाइज अग्री विद मी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड पीसीआर स्टैंड्स फॉर polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction से you're gonna amplify the product that you have so that आपके पास ज़्यादा डीएनए हो, आपको ज़्यादा मटेरियल हो आपके पास चेक करने के लिए। आप एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से कितना चेक करोगे, है ना। So polymorphism is something that you can do and it's polymerase chain reaction। ये बुक में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे वैसे अपना दिमाग लगा के एक हॉट्स बना रही हूँ, पूरा प्रोसेस है। ठीक है, देन वी कम टू RFLP। ठीक है, RFLP is restriction fragment length polymorphism। restriction fragment length polymorphism। I'll just write it for you guys। restriction fragment length polymorphism। देखो ये ना वैसे तो पूरा प्रोसेस इज गिवन इन द बुक, बट अगर कभी कभार ऐसे दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि RFLP एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं दिया हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस मतलब ऐसा लग रहा होगा सोच के कि क्या है, बट देखो जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म आ गया और जहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग आ गया और जहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हो दूसरे एंड पे, वहाँ पे यू कैन मेक आउट कि हाँ इसका आंसर ना यही होगा। बिकॉज MCQs में ना सबसे अच्छी चीज़ दैट यू कैन डू इज गेस मारना। ठीक है, और अगर आपके पास कोई और ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप कर सकते हो, बस ये लग रहा है कि हाँ इसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी है कि ये आंसर हो, तो गेस मारना इज ऑल्सो वेरी नाइस स्किल दैट यू शुड हैव। तो कहीं पे भी मतलब ऐसे कीवर्ड्स लुक फॉर कीवर्ड्स। ठीक है, नाउ दिस इज द वेरी इजी। Which layer of the microsporangium is nutritive in function? Epidermis, endothelium, middle layer and tapetum। मतलब इतना नॉस्टैल्जिया हो गया टपेटम पढ़ के, बिकॉज we used to have this whole debate on tapetum and like ये तो रटा हुआ क्वेश्चन होता था हमको। So yeah, what's the answer? ओके, सो जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना माइक्रोस्पोरेंजियम में एंड वी सी ऑल दीज लेयर्स, तो आपको ना एक जगह ना न्यूट्रिशन लिखकर सारी वो चीज़ें लिख दो जो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे एंडोस्पोम इन अ सीड। ठीक है, है ना, एंड देन न्यूसेलस इन द मेगास्पोरेंजियम, है ना। सो ये सारे न्यूट्रिशन लिखकर इस चैप्टर मतलब बस एक एनसीईआरटी में एक हेडिंग डालो न्यूट्रिशन और ये तीन चीज़ें लिख दो, और तीसरी चीज़ क्या है, टपेटम। सो द आंसर इज टपेटम।
मतलब इसमें कोई डिबेट ही नहीं है और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वाई अदर थिंग्स आर नॉट द एग्जाम्पल. डायरेक्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का. सो देयर इज नो डिबेट अबाउट इट दैट व्हाई इज दिस द आंसर. सो द आंसर इज टपेटम. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वेट एक सेकेंड, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया. Yes. Now, question number 3. You have to basically match the following. एंड हम यही चैप्टर भी करेंगे आज. तो ये आज क्वेश्चन ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के बाद ज़रूर हो जाएगा. तो दिस चैप्टर लास्ट विल डू. ठीक है. सो इट सेज कैटालिटिक कन्वर्टर, incinerators, electrostatic precipitator and sewage treatment plant. सो बताओ क्या होना चाहिए आंसर अकॉर्डिंग टू यू. हाँ जी. सो हाँ, तो मैंने हमेशा बोला है, इसकी ट्रिक बताई है मैच द फॉलोइंग की, कि ऑलवेज स्टार्ट विद द इजीएस्ट ऑप्शन यू सी हियर. ठीक है. अब नाउ इजीएस्ट ऑप्शन फॉर मी इज इंसिनरेटर्स, क्योंकि देखो मेरे को ना बहुत टाइम हो गया मतलब ऐसे बायो पढ़े हुए, बट मेरे को दिख रहा है साफ साफ ये इंसिनरेटर्स. मेरे को ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि इंसिनरेटर्स हॉस्पिटल वेस्ट वाले होते हैं. मतलब इट्स प्रिटी एविडेंट टू मी एंड मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ठीक है. एंड आई नो कैटालिटिक कन्वर्टर्स ना गाड़ी में होता है. मेरे को क्या पता है कैटालिटिक कन्वर्टर्स इज इन गाड़ी. ठीक है. सो गाड़ी में है तो गाड़ी से निकलती है CO एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. इट्स लाइक गिवन इन द बुक, बहुत ही क्लियर शब्दों में. ठीक है. सो इतना मुझे याद है. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आई रिमेंबर इट्स फॉर ऑर्गेनिक सॉरी पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो सकता, मतलब गिवन है नहीं हो सकता. नाउ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो अब मुझे ये पता है कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो तो ऑर्गेनिक वेस्ट BOD को कम करता है. किसे कम करता है? BOD को. BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ऑक्सीजन एंड that is a measure for the amount of organic matter in that. ठीक है. अब मुझे चेक करना है A का 4, ओके, B का 3, ओके, C का 1, ओके, and D का 2, and I get option number 2 as my सबसे मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट ऑप्शन. अब हम देख भी लेते हैं. यस, एंड इट्स करेक्ट ऑल्सो. ठीक है. इसकी अगर ये वाला चैप्टर आपको डिलीटेड पार्ट में था तो प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल होगा ये करना, मतलब याद कर
इसका आंसर निकालना तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो दैट व्हेन एग्जॉस्ट पासेस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड and nitrogen gas. The use of an incinerator is crucial for disposal of hospital waste. Incineration in the high temperature of burn. देखो हॉस्पिटल वेस्ट को हम इंसिनरेटर्स में क्यों डालते हैं बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज इट हैज़ अ लॉट ऑफ वायरसेस ठीक है मतलब it's highly contaminated with pathogens highly contaminated with pathogens right मतलब एक बार को आपका जो न्यूक्लियर वेस्ट होगा दैट इज हाईली हाईली रेडियो एक्टिव बट पैथोजेंस नहीं होंगे उसमें है ना बट इधर पैथोजेंस बहुत ज़्यादा है और तो बायोलॉजिकली देर आर अ लॉट ऑफ चांस देर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि किसी इंसान को बायोलॉजिकली डिजीजेस पैथोजेंस वाली डिजीजेस हो जाए उससे ठीक है Now, electrostatic precipitator can remove over 99% of particulate matter. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का हम फंक्शन समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें काम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स में डस्ट पार्टिकल अटैच हो जाते हैं एंड देन दे मूव इन लाइक करंट में मूव करते हैं सो दैट इट गेट्स particulate matter is very small, right? Electron is also very small. So if that's getting attached to the electron and it's moving, then the dust is getting cleared. Matter is getting cleared. So that's the basic principle of that. ठीक है वो आपको थोड़ा सा physics वाले aspect से समझना पड़ेगा. Then they worked on the principle of attraction of charged particle for an oppositely charged collector, as I said. ठीक है in sewage treatment plant biodegradation of organic matter occurs by microorganism. Biodegradation of organic matters occur by microorganisms. This we have already studied, right? Now question number 4. During gene therapy, which vector is used to introduce functional aDNA cDNA? Functional ADA cDNA. cDNA is complementary DNA. ADA is adenosine deficiency, right? And into lymphocyte. ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन वाले चैप्टर में. What is the answer for this? ये हम पहले कर चुके हैं तो I expect a right answer from you guys. Yes, so what is the answer? वैसे तो it's a very very easy question. हाँ जी तो ये होता क्या है what is a bacteriophage? Bacteriophage is something जो कि बैक्टीरिया को किल करता है. It's a virus but it kills bacteria, right? तो can this be an answer? Then we have option में just a second.
हाँ जी, सो ओके, एक सेकेंड। यप, देन वी हैव ऑप्शन में प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो क्या होता है? देखो प्लाज्मिड इज एक सेकेंड, ये करते हैं हम रेड से। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इट व्हाट इट एक्ट्स एज अ वेक्टर, राइट, इट एक्ट्स एज अ वेक्टर। इसमें जीन सॉरी डीएनए मॉडिफिकेशन करके, डीएनए मॉडिफिकेशन करके मैं होस्ट सेल में डालूंगी। What is bacteriophage? Virus that kills the bacteria, है ना? And this can also be used in our DNA tech, ठीक है। PBR332, it's a plasmid in itself, plasmid in itself, है ना? So now I'm left with this answer, retrovirus, which is the answer. Look, so इसमें क्या होता है कि I take a retrovirus, ठीक है, take a retrovirus, ठीक है। उसमें आप क्या करो कि ये जो डीएनए से आरएनए से डीएनए बनता है ना, आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है, तो आप यू कैन मेक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विद द हेल्प ऑफ अ रेट्रोवायरस बिकॉज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। व्हाट एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो यू कैन मेक अ cDNA। देखो जब भी cDNA की बात आ गई ना, आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है। सो यू हैव टू सी व्हाट कैन, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो बना सकती है। ऑब्वियसली वही बना सकती है जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, वरना तो डीएनए बन नहीं सकता, दैट इज ऑलरेडी देयर, राइट। सो यू कैन मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाय व्हाट, बाय रेट्रोवायरस। एंड उसमें एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगी वो है रिवर्स ट्रांस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको कीवर्ड देखना है, ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, आंसर भी यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हमने कल ही किया था, सो ये दिस तो यू शुड नो। द एनिमल्स दैट फीड ऑन herbivores like insects, birds and mammals in the terrestrial ecosystem are called animals that feed on herbivores like insects, birds and mammals। like ये अगर किया हो या ना किया हो, बहुत easy है। Yes, so what's the answer for this question? देखो saprotrophs, you know what are there, sapro means decomposers, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स तो खुद herbivores ही हुए। ये तो मैंने कितनी बार ऐसे समझाया, ये प्राइमरी वोर्स तो herbivores ही हुए, herbivores, ठीक है। सेकेंडरी कार्निवोर्स, secondary carnivores are the carnivores feeding on carnivores, feeding feeding on carnivores, तो ये भी नहीं हो सकता।
Saprotrophs, they feed on dead and decaying matter. Feed on dead and decaying matter. So we are only left with this, primary carnivores. ठीक है, herbivores को जो खाते हैं वो primary carnivores होते हैं. This is the right answer. And if I may tell you, so these are primary carnivores. These are also known as secondary consumer, and they occupy third trophic. So can you see primary carnivores, secondary matlab two consumer, and they occupy third trophic level. Primary, secondary, third, tertiary. So are you understanding the uh, relation between the carnivores, between the consumers, and between the trophic levels? Now we have question number 6. Recombinant proteins are expressed in. Very easy. Okay. So recombinant proteins homologous chromosomes में express हो सकते हैं क्या? Homologous chromosome होते क्या है? Homologous chromosomes are the chromosomes which are located on the same um, location of any gene. Oh, sorry. Sorry. वो तो homologous genes होती है. I'm sorry. Homologous chromosomes are the chromosomes which are like two same pairs, है ना? Two same pairs means one same pair. Then cloning vector is something जो कि क्लोन्स बनाता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है. ठीक है. सो द प्रॉपर प्योर बुक डेफिनेशन जो हमने मतलब मैंने ऑलरेडी थोड़ी हाईलाइट करवाई है बुक में, जो कि दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दैट जो प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स. ठीक है. एंड बेसिकली this is the explanation also. And heterologous host होना चाहिए था, but आप समझ गए ना heterology का मतलब. So that's the option. Wait, I forgot to. Yes. Okay. यार. हाँ. Sorry. So the chemical carcinogens present in tobacco smoke is a major cause of. Hmm. Okay, so AIDS is मतलब एड्स की क्या फुल फॉर्म क्या बताऊं, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना. सो एड्स हो सकता है क्या? वैसे तो टोबैको में कार्सिनोजन होता कौन सा है, मतलब क्या नाम होता है उसका? निकोटीन. निकोटीन होता है वो. निकोटीन होता है, राइट. सो ना अभी एक बात बताओ, मतलब ये तो काफी इजी क्वेश्चन है बट स्टिल ऐसे डिस्कस करते हैं. मेडिकल अड्डा सेज बी.
विच इज़ द राइट आंसर ऑफ कोर्स। देखो एड्स हो नहीं सकता क्योंकि निकोटीन की वजह से हमें एड्स नहीं हो सकता, क्योंकि एड्स इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ डिजीज दैट वो ऐसे हो, है ना। एलर्जी, एलर्जी हो सकती है, बट देन टोबैको इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ एलर्जी, बिकॉज एलर्जी कैन बी फ्रॉम एनीथिंग। एलर्जी कैन बी फ्रॉम स्मोक स्पेसिफिकली एंड नॉट निकोटीन। हम सिर्फ कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक की बात करें, विच इज लाइक वन ऑफ देम इज निकोटीन। निमोनिया इज जब आपके एल्विलाई में दैट हैपेंस इन योर लंग्स, ठीक है, एल्विलाई के अंदर, ठीक है, but that doesn't cause because of nicotine, ठीक है। so lung cancer is the सबसे अच्छा, सबसे सही answer for this question, ठीक है। very nice. um, Now let's move to the eighth question. Which of the following is the effect of steroids in male? A, premature baldness. B, deepening of voice. C, excessive hair growth on face and body. And D, enlargement of clitoris. मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये मैं एक बार चेक करके आती हूँ। अच्छा ओके, आई गॉट इट। स्टेरॉइड इन मेल्स, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जब आप स्टेरॉइड्स एज इन जो स्पोर्ट्समैन लेते हैं, या फिर आप ड्रग्स वाला स्टेरॉइड्स जब लेते हो, तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, दैट यू नीड टू टेल। ओके सो देखो, ये वैसे भी नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि दिस हैपेंस इन फीमेल्स, राइट, एंड दिस हैपेंस व्हेन यू टेक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, देखो ये वैसे भी होगा ही, है ना। तो हम जब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो दिस इज ओनली द साइड इफेक्ट्स which is premature baldness, so A becomes your answer, which is correct also. Now we have question number 9. Which of the following cells produce antibodies? Monocytes, PMNL neutrophils, T lymphocytes and B lymphocytes. Medical Atta says B again. आपने B किसके लिए बोला है? I mean, अगर आपने 8th के लिए बोला है तो वो तो incorrect है। अगर आपने 7th के लिए बोला है, जो आपने पहले बोल दिया था, तो वो सही है। Now we are doing question number 9. So what would be the answer for question number 9? Acha, you are saying B for 9. That means PMNL neutrophils. 9B. Are you sure the answer is PMNL neutrophils? देखो, हमने पढ़ा है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये अपने आप एंटीबॉडीज नहीं पड़ा बनाते। देखो, आई कैन नॉट टेक गारंटी फॉर a lot of things, but मैं एनसीईआरटी की तरफ से तो बोल रही हूँ दैट पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स आंसर नहीं है। आंसर आपका टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स में ही होगा। एंड जहाँ तक आई नो, टी सेल्स डज नॉट रियली produce secrete antibodies for themselves, but they help B cells to produce them. So neutrophils are monocytes जो हैं आपके A और B, they are phagocytic cells if I'm not wrong. I think हाँ, phagocytic cells हैं, तो phagocytic cells तो antibodies produce नहीं कर सकते, so your only option left is B, lymphocytes. पता नहीं, बट आप ऐसे याद कर सकते हो दैट टी सेल्स आर द हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर बहुत बोलते हैं हम, है ना। T helper cells, so does not really produce antibodies in itself, but they help B cells, B lymphocytes to produce it.
ठीक है, आई होप इट्स क्लियर जो आप कह रहे हो कि इसका आंसर सी है, बी है, बी सी दोनों नहीं है, इसका आंसर डी है. Now question number 10. Question number 10 says nutrient cycles are of two types. A. Gaseous and solid. B. Liquid and sedimentary. C. Gaseous and sedimentary. And D. Aquatic and gaseous. ये तुमने कल ही किया था. I mean कल डिस्कस किया था मैं चैप्टर, तो I don't think so it should be a problem. Okay, so nutrient cycles are of two types. इसका आंसर है ये gaseous and sedimentary. And gaseous में आपके ऑप्शंस आते हैं, मैं I'll write it with some else. किस कलर से लिखूं? रेड से लिखती हूँ चलो. गैसेस में आपका आता है कार्बन एंड नाइट्रोजन. वाओ, व्हाट इज दिस? एंड देन इसमें आपका आता है फॉस्फोरस. ये आपके बुक के एग्जांपल्स हैं. सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस टुडे. ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का. ठीक है, उसके लिए आई एम जस्ट सेइंग कि 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जब तक मैं अपना लैपटॉप चार्ज पे लगाती हूँ एंड पीडीएफ खोलती हूँ. एंड अभी हो रहे हैं 6:46, सो 6:48 से वील स्टार्ट अगेन. Until then, if you have any kind of doubt or any kind of query, you can write it in the chat box. ठीक है, and I'll see that. And 2 मिनट का break. Yes, so can you guys hear me?
You guys can hear me? Ooh, okay, so I hope you can hear me. So let's start. Today probably will not be able to complete this chapter because ये थोड़ा बड़ा है. बड़ा क्या है? Explain करना है उसके अंदर because आपने पहले नहीं किया होगा. चलो, let's see. See, पहले तो ना I'll suggest कि इस बार ना NCERT की साइड में just write acts. Like इसमें दिया हुआ है Environment Protection Act 1986. So it should be very very like um, by heart to you. ठीक है, थोड़ी सी बायो में हम हिस्ट्री ला रहे हैं. ठीक है, सो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एंड देन देयर आर एग्जांपल्स गिवन. ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और ये है स्क्रबर का. ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लाइक आई सेड. ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं स्मोक स्टैक्स की. So smokestacks are thermal power plants, smelters and other industry release particulate and gaseous air pollutants together with harmful gases such as nitrogen, oxygen, etc. ठीक है, so these pollutants must be separated or filtered out before releasing the harmful gas into the atmosphere. तो इसके लिए हमारे पास क्या है? दो options है, scrubbers and electrostatic precipitators. Just a second. हेलो. हाँ, आवाज़ आ रही है ना? आई एम रियली सॉरी, कॉल आया था, मम्मी का था तो मिस नहीं कर सकते थे. यस, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की हम बात करते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इट इज सेड दैट, ये मतलब एक्सप्लेनेशन में भी था, इट रिमूव्स ओवर 99% पार्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट. इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स. इलेक्ट्रोड वायर्स क्या करती हैं आपको पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करती है, राइट? है ना? तो आपकी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो गई तो क्या चार्जेस अट्रैक्ट होंगे? चार्जेस अट्रैक्ट होंगे तो क्या करंट फ्लो होगा, है ना? सो इलेक्ट्रोड वायर है मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स. ठीक है, सो विच प्रोड्यूसेस कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आप समझ गए. अब नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू द डस्ट पार्टिकल्स. लाइक मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस पर डस्ट अटैच हो जाती है. ठीक है, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और इस पे डस्ट अटैच हो गई, तो अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन द इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड, और उसके बाद डस्ट भी लाइक मूव करेगी इसके साथ, है ना? सो द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल. अब ग्राउंडेड होगी इलेक्ट्रो ये प्लेट. ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाएंगे. So the velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. A scrubber, now we come to a scrubber, which is again the second thing that helps, can remove gases like sulfur dioxide, very important. ठीक है, SO2. In a scrubber, the exhaust is passed through a spray of water or lime. ठीक है, lime, not lemon, obviously. So recently we have realized that the danger of particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitators. So now we have CPCB, which is Central Pollution Control Board. Particular matter size
2.5 micrometers or less than in or less in a diameter, PM 2.5, are responsible for causing the greatest harm to human health, because obviously वो remove नहीं हो सकते इतनी easily, जितना बड़ी चीज़ होगी उतनी जल्दी remove हो जाएगी, है ना? So automobiles are major cause for atmospheric pollution, at least in the metro cities. ठीक है, and it is moving to other cities as well. So now we have catalytic converters having expensive metal, namely platinum, palladium, and rhodium as the catalysts. They are fitted into the automobiles for reducing emissions of poisonous gases. As the exhaust passes through the catalytic converter, unburned hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitric oxides are reduced to carbon dioxide and nitrogen gas respectively. ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ अनलेडेड पेट्रोल. अगर हम लेड वाला पेट्रोल यूज़ करेंगे ना तो वो इनएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को. लेड समझ गए ना, पीबी. एक सेकेंड. हाँ, सही बोला, सही बोला. ठीक है. सो नाउ इन एयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट था. देन उसके बाद 1987 में अमेंड हुआ था सो दैट द वर्ड नॉइज कुड बी एडेड इनटू इट, बिकॉज नॉइज इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट. ठीक है, देन वी हैव, मतलब नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है ये आप एक बार पढ़ लेना. नॉज या हेडेक्स एंड स्टफ, ये साइकोलॉजी में भी दिया हुआ होता है. ठीक है, नाउ वी हैव कंट्रोलिंग व्हीकुलर पोल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली. सो इस वाले जो चैप्टर में ना बहुत सारी केस स्टडी दी हुई है. एक तो ये है दिल्ली एयर पोल्यूशन का. तो हमने बोला कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हैं वो हमने डीजल से सीएनजी कर दी. सीएनजी इज कंप्रेस नेचुरल गैस. ठीक है, नाउ इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसमें सीएनजी की एडवांटेज है विच इज़ इट बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली unlike petrol or diesel in the automobiles, and a very little is left unburned. Are you getting these ढोल आवाजें? देखते हैं कंटिन्यू होती है तो. Okay. So CNG is cheaper than petrol or diesel, so it cannot be siphoned off by thieves and adulterated like petrol or diesel. ठीक है, the main problem is with switching over CNG to difficulty of laying down pipelines to deliver CNG. और एक और भी बहुत ज़्यादा important चीज़ होती है, मतलब बुक में नहीं है, that गर्मियों में the cylinder might burn, right? फट जाता है. ठीक है, नाउ देयर इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये नॉर्म्स हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं भारत स्टेज नॉर्म्स या फिर यूरो नॉर्म्स भी कह सकते हैं. मास एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत स्टेज 2 इज इक्वलेंट टू यूरो 2 नॉर्म्स. ठीक है, एंड ये आपको लाइक याद रखना है कि फोर व्हीलर्स के लिए क्या है और किस किस सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ एंड व्हाट सिटीज़ आर देयर. तो इसका ना देखो, मतलब वैसे ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है और मतलब नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं है. ठीक है, और ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपका कुछ एग्ज़ाम वगैरह में आए, बट आ सकता है. तो अगर आपको याद करना हो और आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब तो आप मुझे बता देना, मैं एक ट्रिक बना दूंगी, बट अभी आज सच मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ट्रिक की ज़रूरत है. नाउ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन एक्ट, देन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 1974. ठीक है, सो हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, इसमें ना ये सारे स्टैट्स दिए हुए हैं. इम्प्योरिटीज़ जैसे 0.1% है. तो इसमें क्या क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स है, स्लेट एंड स्ले, कोलाइडल मटेरियल है लाइक फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ और पेपर फाइबर्स, देन डिसॉल्व्ड मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम. ठीक है, नाउ वी हैव फिश किलिंग एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स. एंड जब हम साफ करते जाते हैं, reappearance of clean water organism. This is the exact same sewage treatment का flow chart which is there in the chapter पहले, मतलब वहाँ पे flow chart नहीं है, but अगर flow chart आए तो यही आएगा. ठीक है, now ये BOD वगैरह हम already बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. Now we have to understand what is algal bloom.
ठीक है। जब फ्री फ्लोटिंग एल्गा जो होता है ये पूरा कवर कर लेता है ऊपर, लाइक द आउटर सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ड्यूटरेशन होती है, वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं पास हो रही, ऑक्सीजन नहीं पास हो रही, है ना। सो these algae are extremely toxic to human beings and animals. ठीक है। Now, these animals, so these are plants of water hyacinth, which is Ecornia crescens, the world's most problematic aquatic weed. It's also a very invasive, like very alien species, invasive species, which is known as terror of Bengal as well. ठीक है। Then then दिया हुआ है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है। तो वाटर में जैसे इतना है, हमारे जैसे मान लो वाटर में ना आपका ए सब्सटेंस है जो बहुत छोटा है, ए सब्सटेंस है, इधर है, फिर इधर है ए, ऐसे दो मॉलिक्यूल है। अब ना ये फिश आई, फिश ने ये थोड़ा सा खा लिया, फिश आई, फिश ने ये थोड़ा सा खाया। ठीक है। फिर दूसरी फिश आई, दूसरी फिश ने खाया, फिर सबने खाया। ठीक है। अब ना एक फिश के अंदर तो सिर्फ इतना सा ही पार्ट गया, है ना। लेकिन अब एक शार्क आई, शार्क ने उन सारी फिशेस को खा लिया, तो उस शार्क के अंदर ये गया। ठीक है। देन दूसरी कोई बड़ी फिश आई, उसने ये खाया, तो उसके अंदर ये गया। सो ऐसे ऐसे मैग्नीफाई होता रहता है, जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सब्सटेंसेस खा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे वो बढ़ता रहता है। क्या करें फिर, बंद कर दें आज का? चलो 1 मिनट वेट करते हैं, अगर ये जाता है तो और बढ़िया। म्यूट करती हूँ। ओके, बहुत कम हो गया, सिग्निफिकेंटली कम हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। बायोमैग्निफिकेशन समझ गए, राइट? सो इट्स दैट, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है डीडीटी, ये आ सकता है। आई मीन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बट ये जो स्टैट्स है, लाइक ये जो फिगर्स दी हुई हैं, प्रॉपर्ली दे कैन कम। नाउ यूट्रिफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक बाय बाय एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द वाटर। ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है। ठीक है। So with time, streams draining into lake introduce nutrients such as nitrogen and phosphorus, which encourage the growth of aquatic organisms. ठीक है। अब यूट्रिफिकेशन होते होते क्या होगा, इवेंचुअली क्या होगा, वो जो जगह है वो अक्वेटिक नहीं रहेगी, टेरेस्ट्रियल बन जाएगी, है ना। और हमारे जो एक्टिविटीज़ है, हम जो इंडस्ट्री से इफ्लुएंट डालते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, दे हैव बीन रैपिडली एक्सेलरेटिंग द एजिंग प्रोसेस, और उसको हम कहते हैं कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। ठीक है। हाँ जी। सो दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गे कॉजिंग अनसाइटली स्कम, एंड ये आप पढ़ लेना। एंड केस स्टडीज नहीं पढ़ा रही, मतलब केस स्टडीज नहीं पढ़े हम, सिर्फ वेस्ट वेस्ट पढ़ा है। केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दो, बट स्टिल ये आप कर सकते, केस स्टडीज हैव नथिंग टू लाइक, अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। ठीक है। सॉलिड वेस्ट रेफर टू एनीथिंग दैट गोज इन द ट्रैश, राइट। हमारे पास सैनिटरी लैंडफिल्स हैं। ठीक है। तो वेस्ट जो होता है ना, एक हम ऐसे गड्ढा टाइप बना देते हैं, और उसमें हम डालते जाते लाइक हम फिर उसमें वेस्ट डालते हैं, देन डर्ट डालते हैं, फिर वेस्ट डालते हैं, फिर डर्ट डालते हैं, और वो ऐसे ऐसे करते करते पहाड़ टाइप बन गया है। आई मीन इफ यू लिव नियर और इन गाजियाबाद, सो यू मस्ट हैव सीन दैट पहाड़ दैट वी हैव। ठीक है। So always that we generate can be categorized into three types, which is very very important: biodegradable, recyclable and non biodegradable. ठीक है। एंड ये जो आपके
गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की हम बात करें, इको फाइबर हम प्लान्स बढ़ाना चाहते हैं। देन ई वेस्ट की हम बात करें, ई वेस्ट आर देन अगेन buried in landfills or incinerated. Over half of the e-waste generated in the developed world are exported to developing countries like China, India, Pakistan. ठीक है। For metals like copper, iron, silicon, nickel and gold are recovered during the recycling process. ये एक क्वेश्चन भी था, CUET क्वेश्चन, कि what metals are recovered during the recycling process. Copper, iron, nickel, silver, gold. Sorry, copper, iron, nickel, gold. देन दिस इज अ बहुत अच्छी केस स्टडी। पॉली ब्लेंड एक प्लास्टिक है, सो लाइक प्लास्टिक का ब्लेंड बना के आप बिटुमिन के साथ लोड रोड्स ले करने में लगा सकते हो, तो वो रोड्स की स्टर्डनेस भी बढ़ाता है, प्लस प्लास्टिक को डिकम्पोज, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो उसको ठिकाने लगाने का बेसिकली एक जगह पे मिल गया। नाउ एग्रोकेमिकल्स में फर्टिलाइजर्स हैं जो कि न्यूट्रिफिकेशन बढ़ाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन श्योर। बाकी सब ठीक है, बाकी देन अगेन की स्टडी है, पढ़ लेना। रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्लोबल इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, कल करें क्या? कल करते हैं या फिर कराऊं? ये तो बड़ा है, ये चैप्टर बचा भी है। हाँ, 7 7 7 हो गए, कल ही करते हैं। कल ही करते हैं, कल ये वाला जल्दी जल्दी करा देंगे एंड जेनेटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कल करते हैं, कल करते हैं। ओके सो यस, थैंक यू। स्लाइड खोल लेती हूँ मैं जल्दी से अपनी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड being patient and answering questions and stuff, like and to answer questions, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUT एग्जाम। कोई डाउट हो, कोई स्पेशल टॉपिक हो जो पढ़ना हो, तो यू कैन टेल मी अलग से। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू गाइस लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। एंड कुछ और बात हो तो यू कैन टेल मी। एंड या ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।